Hello and good afternoon, everyone. This is Abhishek Tiwari here, and I'm presenting you the very third video of your, tense in it. Uh, Consecutive videos I have just provided you. Last two videos consecutively you got right now. So this is the third video which I'm providing you on this YouTube platform. So student. uh, let's talk about now, as in the last two lectures we have studied about present tense. Okay, all the parts of present tense, like you know uh, present indefinite tense, simple present, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Okay, all right guys, so let us talk about present let us talk about past indefinite past tense. Past tense is also comprises of four subtypes, like past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. Okay students, so let us see one by one everything and in detail, and after that everything like structure, examples, everything I'm going to provide you right here. Okay, let's see. So here students, the first one is simple past tense. Okay, past tense in it, let's talk about past indefinite. Okay, so past indefinite की हम बात करेंगे. In past indefinite, the auxiliary verb which required, actually auxiliary verbs are helping verb जिसकी requirement होती है. So auxiliary verbs जो यहाँ use होता है, actually जो like the present indefinite tense, the past tense also similarly does not need any past indefinite does not need any auxiliary verb over there, only the verb second form. Okay, verb second form is is required. So it means the structure would be, इसका structure क्या हो जाएगा, subject plus verb second form. Okay, then you can add like objects and other things. Okay, so ये structure होता है subject plus verb second form and then object. So verb second form आपको यहाँ introduce करना होता है. कोई भी auxiliary का use आप affirmative sentences में नहीं करते हैं. Okay, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव्स में डू डस का यूज़ नहीं होता था, वहाँ पे केवल एस और ई एस लगता था सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में. ओके, वर्ब में. So here let's talk about next thing, that is that there is no auxiliary verb here in this past indefinite tense, means simple past tense. So over there only subject, then verb second form, and then object. This is what the structure of the affirmative sentences. Okay, now let's talk about affirmative. After affirmative, let's talk about negative sentences. Okay, so negative sentences की बात करेंगे. So in negative sentences, okay, so here you would simply use an auxiliary. auxiliary verb के रूप में आप यूज़ किसको करेंगे, did का यूज़ करेंगे. Okay, आप did का यूज़ करेंगे auxiliary verbs के रूप में. So your structure would be, structure क्या होगा, subject plus did, okay, plus not, and then verb. But remember one thing, verb would be in the first form. Okay, जो वर्ब होगा वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होगा, मीन्स फर्स्ट फॉर्म वर्ब का होगा. मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा. ओके, इट मीन्स ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस होल्ड्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना होगा. ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आप डिड नॉट लगा देंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. ओके, ऑल राइट. देन आफ्टर वी लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, सो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव्स में सिंपली ऑक्सिलरीज वही डिड ही होंगे. ओके, तो सिंपली जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि निगेटिव में था, उसका केवल आपको ऑक्सिलरी आगे कर देनी है, तो ऑक्सिलरी डिड आगे हो जाएगा. ओके, डिड, तो डिड हो गया,
देन आफ्टर डिड के बाद देन सब्जेक्ट, ओके, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, लाइक दिस you would write the question, okay, and then after next सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है वहाँ पे आप WH टाइप वर्ड लिखेंगे, देन डिड, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. ऑलराइट, दिस इज द स्ट्रक्चर, मीन्स WH टाइप वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस WH टाइप के. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स को. एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, लाइक आई रोट लेटर. सो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है. देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब, देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी ऑक्सिलरी इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है. ओनली पास्ट टेंस का जो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस होता है ओवर देयर यू हैव टू सिंपली यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई रोट लेटर, ओके, लाइक दिस. लाइक रोट क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया एंड लेटर ऑब्जेक्ट हो गया. सो स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ओके. अब इसको नेगेटिव बनाना होगा तो सिंपली हम नॉट लगा देंगे, किसके बाद, डिड लगा करके. सब्जेक्ट लिखेंगे आई एंड देन डिड लगाएंगे. डिड का यूज़ हर जगह करना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट्स हो. देन आफ्टर यू वुड राइट नॉट, नॉट के बाद फिर रोट, जो रोट है उसको आप राइट कर लेंगे, ओके, लाइक दिस, राइट अ लेटर, ओके, like this. I did not write a letter, you simply would write it. तो ये हो गया. अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड को आप आगे कर देंगे, ठीक है. डिड आई, आप यहाँ से डिड को हटाएंगे, तो डिड को यहाँ से हटाएंगे तो आपको बेसिकली यहाँ से डिड हटा देने से क्या मिलेगा, यहाँ से आप डिड को हटा देंगे तो आप बेसिकली देखेंगे कि इसके बाद आपको क्या मिलेगा, डिड आप यहाँ पे लगा देंगे, ओके. सो आप डिड यहाँ पे लगा देंगे तो ये इस तरह से, डिड आई नॉट राइट लेटर एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क, ओके, डिड आई नॉट राइट लेटर, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ओके. अब इसका एक सेकेंड इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, आप वाई या व्हाट या जो भी लिखना है, वाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर, ओके. दिस इज़ द नेक्स्ट टाइप और द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस. ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सिंपल और पास्ट. लेट्स टॉक अबाउट पास्ट टेंस में हम लोग अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ओके. पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है, ओके, ओवर देयर जो ऑक्सिलरीज होंगी, ओके, ऑक्सिलरीज वर्ब मीन्स जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बेसिकली वॉज एंड वर होता है, ओके, वॉज एंड वर होता है, क्लियर, WERE वर. सो ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ करते हैं वॉज एंड वर, एंड देन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म विच मीन्स वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, ओके. वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ऑक्सिलरी वॉज वर्ब प्लस वर्ब्स ING फॉर्म, दिस इज़ व्हाट द थिंग यू नीडेड. स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ओके, वॉज वर, देन आफ्टर प्लस मेन वर्ब विथ ING, ओके, मेन वर्ब विथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट, लाइक दिस. आप इस तरह से इसको लिखेंगे. निगेटिव बनाना होगा तो वॉज वर के बाद आप नॉट यूज़ कर लेंगे तो निगेटिव बन जाएगा. इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ये वॉज और वर को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले ले जाना है और एक क्वेश्चन मार्क पुटअप करना है, ठीक है. और अगर इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना है तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे, क्वेश्चन वर्ड होंगे, उसके बाद वॉज वर, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब्स ING फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके, लाइक दिस, एंड द क्वेश्चन मार्क एज वेल. तो इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे. अब आप जान लीजिए कि वॉज एंड वर का यूज़ कहाँ होता है स्टूडेंट्स. सो वॉज एंड वर का यूज़ हम देखते हैं. सो आई, वी एंड दे
यू, ओके, सॉरी आई को आप काट देंगे यहाँ से, आई नहीं, वी दे यू एंड प्लूरल्स, ओके। इनके साथ क्या करेंगे आप, वर का यूज़ करेंगे, ओके, वर का यूज़ करेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट वॉच की बात करते हैं, तो आप वॉच का यूज़ कहाँ करेंगे, अगर आप वॉच की बात करें तो आप वॉच की बात जो है ओके, वॉच की बात करें तो आई, ही, शी, इट एंड नेम, इनके साथ आप वॉच का यूज़ करेंगे, ओके। सो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कैसे करना है। अब आप स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, सेंटेंसेस को आप देख लीजिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज जो है वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन राइटिंग जो है वो मेन वर्ब हो गया, ओके, मेन वर्ब हो गया, एंड देन अ लेटर इज़ ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है। अब नेगेटिव बनाना है, सो आई सब्जेक्ट प्लस मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट लगा देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सो आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम वॉच को हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हम इसको हम WH टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं, सो क्या करेंगे, व्हेन वॉज आई राइटिंग अ लेटर, ओके, वेयर वॉज आई राइटिंग अ लेटर, लाइक दिस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस तरह से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बात आती है परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट की हम बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, सो आई हैड रिटन अ लेटर, एक सेंटेंस दिया है। पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सिलरीज़ की, ओके, ऑक्सिलरीज़ की बात कर लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज होगा। सो ऑक्सिलरी वर्ब सिंपली यहाँ पे हैड का यूज होता है, ओके। हैड नाम के आप हैड नेम्ड ऑक्सिलरी यूज करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड ओनली, सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल्स हो ना, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नेम, सबके साथ, ओके। सो ऑक्सिलरी हैड का यूज़ करेंगे, एंड देन मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब आपको थर्ड फॉर्म, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म जो है हम यूज़ करेंगे। क्लियर, मेन वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, उसको लिखेंगे, ओके। सो अब यहाँ क्या करना है आपको, मेन वर्ब जो है उसको आप सिंपली थर्ड फॉर्म में कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस, ओके, सब्जेक्ट प्लस आफ्टर इट auxiliary or helping verb, okay, then after main verb third form, okay, and then main verb third form and then object like this, okay. So इसको हम बनाएंगे रुक जा एक मिनट का भा, ओके। सो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे एंड देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है उसको हम कहते हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आई कर देंगे, ओके, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ओके। और क्वेश्चन सेकंड टाइप का है तो WH टाइप वर्ड्स, देन ऑक्सिलरी, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपका जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा सारे टाइप के सेंटेंसेस के, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ एक और अलग चीज़ बतानी है, वो थोड़ा सा समय देंगे आप तो हम बताते हैं आपको, ओके। सो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेंटेंस आप देखिए यहाँ पे, आई हैड रिटन अ लेटर। सो आई हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब, ओके। देन आफ्टर रिटन हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू सिंपली, सो अगर इसको नेगेटिव बनाना है सो हैड के बाद नॉट लगा देंगे सॉरी,
आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, ओके, लाइक दिस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाना है, सो हैड आई रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड बनाना है, सो व्हेन हैड आई रिटन अ लेटर, वाई हैड आई रिटन अ लेटर, हाउ हैड आई रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ऐसे आपको लिखना है, ओके। एक सेकेंड टाइप का परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एक सेकेंड टाइप का होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में, ओके। लाइक दिस, आपने सेंटेंसेस सुना होगा, मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको बताता हूँ, ओके। उसको आप यहाँ से देख लेंगे, लाइक आई द यू नो, लाइक सिंपली एक दूसरा सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं, द थीफ, ओके, thief ran away, okay, the thief had run away before, okay, before the police came, okay, before the police came। अब यहाँ पे देखिए, ये भी पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। द थीफ हैड रन अवे, ओके, बिफोर द पुलिस केम। द थीफ हैड रन अवे, ये एक सेंटेंस हो गया। थीफ हैड, थोड़ा सी यहाँ पे एक्चुअली लिखने में प्रॉब्लम है बच्चों, स्क्रीन थोड़ी बहुत बड़ी नहीं होती है सेल फ़ोन की, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग, देयरफॉर जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स पे फोकस करेंगे, नॉट माई स्क्रीन राइटिंग पे, ओके। सो द थीफ हैड रन अवे, ओके, इट मीन्स ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है इतना। उसके बाद लिखा है बिफोर, और बिफोर के बाद लिखा है द पुलिस केम, तो पुलिस केम सेकेंड फॉर्म वर्ब का लगा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे एक तरह का ऐसा सेंटेंस बनता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, जहाँ क्या होता है, एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है, देन आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करते हैं, ओके, बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करते हैं, एंड देन अगला पार्ट होता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस यूज़ करते हैं। दो पार्ट में सेंटेंस होता है, बीच में बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करते हैं। लाइक द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, ओके, तो ये भी एक सेंटेंस है कि पुलिस डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका था, ओके। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर्स अराइव्ड, ओके, पैसेंजर के आने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, चली गई थी। तो ये भी एक सेंटेंस है, परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो बेसिकली ये भी एक टाइप का पास्ट होता है, जहाँ पे एक सेंटेंस पहला वाला पास्ट परफेक्ट में होता है, फिर बिफोर एंड आफ्टर होता है, एंड द सेकेंड सेंटेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। दिस इज़ व्हाट द नेक्स्ट टाइप ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, एक और टाइप बचा अभी, अगला हम पढ़ लेते हैं पास्ट टेंस में। जो अगला है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें स्टूडेंट्स, सो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें ऑक्सिलरीज जो होती हैं, ओके, ऑक्सिलरी जो वर्ब होगा वो क्या होगा, हैड ही होगा, लेकिन हैड के साथ आपको बीन लगाना पड़ेगा, हैड बीन, ओके, हैड बीन का यूज़ आपको करना पड़ेगा। सो ऑक्सिलरी के रूप में हैड बीन का यूज़ सबके साथ आप करेंगे। अब वर्ब जो होगा इसमें, मेन वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था, मेन वर्ब जो होगा वो आईएनजी फॉर्म, मतलब कि फोर्थ फॉर्म होगा मेन वर्ब का, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन, और मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म, जिसको कंटिन्यूअस लगा हुआ, जिसमें कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म यूज होता है, बी टाइप वर्ब फॉर्म, ओके। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट एंड देन हैड बीन, ओके, हैड बीन, एंड देन सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। आपको इसको निगेटिव बनाना है, हैड को आगे कर दीजिए, केवल हैड को आगे करेंगे, हैड देन सब्जेक्ट देन बीन,
ओके सॉरी इंट्रोगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, एंड सब कुछ वैसे ही मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। निगेटिव बनाना होता है तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, ओके तो वो हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। और जब इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, डब्ल्यूज टाइप वर्ड लेंगे, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें जो है आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर सेंटेंस को भी देख लेते हैं इसके बेसिस पे। तो एक सेंटेंस यहाँ पे दिया है, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे टाइम भी दिया, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया था कि यहाँ पे एक टाइम दिया होता है, निश्चित और अनिश्चित मीन्स इन सर्टन एंड सर्टन टाइम दिया होता है, पीरियडिक टाइम होता है, सर्टन टाइम होता है, ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पीरियडिक और शॉर्ट और इसके अलावा जो है सर्टन टाइम्स को किस तरह से हम बांटते हैं, जानते हैं, ओके। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ सेंटेंस में आप जो है जब आप मेन वर्ब लिख लेते हैं, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आप सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं उसके अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ओके। अब यहाँ आप सिंस फॉर का यूज़ करके आगे का टाइम लिख सकते हैं। सो आई जो सेंटेंस हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में, हैड हो गया, हैड बीन ऑक्सिलरी हो गई, राइटिंग हो गया मेन वर्ब एंड लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, तो आप क्या करेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड आगे कर देंगे, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर, बीन और हैड के बीच में आप आई लगा देंगे। और अगर सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्वेश्चन मार्क पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कि वाई हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर, when had I been writing a letter, like this and then question mark। तो ये आपको करना होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। ये पास्ट टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट के बाद फ्यूचर टेंस को स्टडी करते हुए मिलेंगे, ओके। सो फॉर दिस स्टे ट्यून्ड। और आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया हो और अगर आप नए विजिटर हैं तो आप पहले मेरे वीडियो को जो है पहले आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फिर आप जो है इनको सब्सक्राइब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन वीडियोस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके कुछ अपने लिए कुछ उसका बेनिफिट गेन कर सकें, ओके। दिस इज़ व्हाट all my request to you. Thank you. Have a good day. A good day ahead. Thank you.